تو تمہارے سوالوں کا جواب آ چکا ہے بندے، اللہ کے دربار سے پیغام اتر آیا ہے رحمت کی زبان میں، نور کے لفظوں میں، جو تم نے راتوں کی تنہائی میں رو کر پوچھا تھا، یا رب میرا یہ کیوں نہیں ہوا، میری دعا کب قبول ہوگی، وہ سب سنا گیا۔ تمہارے ہر کیوں کا جواب لکھا گیا ہے لوح محفوظ پر۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے ہر آنسو کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرا صبر بیکار نہیں جائے گا۔ جو تو نے مانگا وہ وقت آنے پر تجھے ایسے دوں گا کہ تیرا دل سجدے میں پگھل جائے گا۔ تو نے جو کھویا اس میں بھی میری حکمت تھی، اور جو تجھے نہیں ملا اس میں میری رحمت تھی۔ تیرا ہر ٹوٹا خواب دراصل نئی روشنی کا دروازہ ہے۔ میں تجھے اتنا ہی دیتا ہوں جتنا تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب شکایت چھوڑ دے اور بھروسہ کر اس رب پر جس نے تیرے لیے وعدہ کیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تیری دعا کا سفر ختم نہیں ہوا، وہ بس میری حکمت کے موسم کا انتظار کر رہی ہے۔ جب وقت آئے گا تیری روح سجدے میں کہے گی، یہی تو وہ جواب تھا جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تیرا یہ سفر اب نئے موڑ پر ہے۔ سن اے جان خلوص، میں نے تیرے زخموں کو دیکھا، تیری راتوں کے خاموش رونے کو گنا، تیرے دل کی الجھنوں کو سمجھا، اور ہر چیز کا حساب میں نے اپنی رحمت کی ترازو میں رکھا ہے۔ تو نے سوچا کہ تیرا انتظار ویرتھ تھا، پر میں ہر انتظار میں ایک پریکشا اور ایک رحمت رکھتا ہوں۔ کچھ چیزیں بس اس وقت نہیں ملتی جب تک تیری آتما تیار نہ ہو، تیری نیت صاف نہ ہو، تیری ہمت پرکھ لی نہ جائے۔ یاد رکھ میرے بندے، جو تو سمجھتا ہے کہ مقدر نے تجھے ٹھکرایا، اکثر وہی مقدر تجھے اس منزل تک پہنچانے کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے جہاں سے تیری اڈان پوری طرح بدلے گی۔ میں نے تجھے وہی دیا جو تیرے لیے بہترین تھا۔ اس نے بھی جو کھویا اس میں میری بدھیمانی تھی۔ کبھی کبھی کسی خواب کا ادھورا رہ جانا کسی اچھے کام کے لیے جگانے والی گھنٹی بن جاتا ہے، کسی انجانے بسر کی راہ کھولتا ہے۔ تو نے کہا میری دعا کب قبول ہوگی؟ میں کہتا ہوں جب تیری نیت میں سچائی ہوگی، جب تیرے ارادوں میں نکھار ہوگا، جب تو میرے ساتھ اپنے غم اور خوشی دونوں بانٹے گا۔ کیونکہ دعا صرف شبد نہیں، وہ فریاد ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور روح تک پہنچتی ہے۔ میں نے تیرے لیے وعدہ کیا ہے نہ صرف استھائی سکون، بلکہ وہی استھائی رحمت جو تیری روح کو ٹھنڈک دے۔ امید رکھ لیکن کام کر، ہمت رکھ پر اپنے قدمان کو بھی سنبھال، کیونکہ تیری کوششوں کو میں نے دیکھا ہے اور ان پر اپنی برکت کا سیل لگاؤں گا۔ تیری محنت میں جو تھکان ہے وہ میرے حکم کے آگے امتحان بنے گی۔ تیرے ہر آنسو کا حساب کتاب میری دفتر خدا میں درج ہے، اور میں انہیں ایسی وجہوں میں بدل دوں گا جو تو نے کبھی سوچ بھی نہ رکھی ہو۔ کسی مسکان کی شروعات، کسی نئے راستے کی شروعات، کسی ایسے رشتے کا آغاز جو تیرے لیے اصلی تقدیر بنے۔ جب تیرے دل میں شنکا اٹھے تو یاد رکھنا کہ اندھیرا بھی ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ سورج کا ادے تیری امیدوں کو روشن کر دے گا۔ تو نے جو سپنے دیکھے اور جو ادھورے رہے، ان میں چھپا ہوا میرا سکھایا ہوا سبق ہے۔ کچھ چیزیں جب سمے پر نہ پہنچے تو بہتر ہے کہ میں انہیں اور بہتر اور تیرے لیے زیادہ مفید بنا دوں۔ اس لیے اپنا سر نہ جھکا، اپنی نظریں نہ جھکا، سجدہ کرتے ہوئے بھی اٹھ اور اپنی قوت کو پہچان۔ میں تیرے ساتھ ہوں ہر بلند لمحے اور ہر گراوٹ میں۔ تیری ہر چاہت میں میری دیا کا انش ہے۔ جب تو میرے بندوں کے ساتھ انصاف کرے گا، جب تو اپنے آپ سے محبت کرے گا اور اپنے حالات سے لڑنے کی ہمت رکھے گا، میں تیرے لیے راستے کھول دوں گا، اور تجھے احساس ہوگا کہ میری دہلیز پر آنا ہی سکون ہے۔ تو نے کہا کہ بہت وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمت والوں کا حساب نہیں بھولتا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مسلسل کوشش کا پھل ملے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو دل میرے پاس جھکا کر آئے گا اسے میں اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ یہ وعدے صرف خواب نہیں، میرے الفاظ ہیں، میری قسمیں ہیں، اور میری قسم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اب جو کچھ بھی تجھے ویاکل کرتا رہا اسے الوداع کہہ دے۔ ان لمحوں کو سیکھ سمجھ کر اپنے بھیتر سنبھالے، اور جو نیا آنے والا ہے اسے دل سے اپنانے کی تیاری کر۔ تیرے راستے میں جو مشکلیں آئیں وہ تیری طاقت بڑھانے کے لیے تھیں، جو لوگ چلے گئے وہ تیری اصلی راہ دکھانے کے لیے تھے۔ جو چیزیں ٹوٹیں ان کا جڑ بن کر کچھ نیا انکرت ہوگا۔ اپنی نظریں اوپر رکھ، اپنے دل میں میرے نام کی لو قائم رکھ، اور اس نیک ارادے سے آگے بڑھ کہ تو میری سیماؤں میں رکھے ہوئے حکموں کا پالن کرے گا۔ تیرے لیے ایسی خوشخبری ہے
कि जब वो घड़ी आएगी, तेरी आंखों की थकान भर जाएगी, तेरी रूह बोल पड़ेगी और कहेगी, यही वो जवाब था जिसकी तलाश थी। क्योंकि हर सवाल का जवाब सिर्फ नसीब और समय नहीं, बल्कि मेरी रहमत और तेरी समर्पण निष्ठा का मेल होता है। अब चल अपने घर की तरफ लौट, अपने काम को ईमानदारी से कर, अपनी गलियों में नेक बातें बिखेर, और जहां भी तू कमजोर महसूस करे, मेरे नाम का जिक्र कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और जब तू मेरे दरवाजे पर एक नई उम्मीद लेकर आएगा, मैं उसे खुले हाथों से स्वीकार करूंगा। तेरी दुआ का सिरा मैं पकड़कर उसे ऐसी मंजिल तक ले जाऊंगा जहां तेरे आंसू खुशी में बदल जाए और तेरी धड़कन सुकून पाले। अब सुन, जो अब तेरे सामने आया है वह सिर्फ खुशखबरी नहीं, एक नए सवेरे का पैगाम है जो तेरे नाम लिखकर भेजा गया है। इसे हल्के से महसूस कर, गहराई से जी ले। उन रातों की परछाइयों में जो तूने अपने आंसुओं से बुनी थी, मैंने उनकी हर धड़कन को अपनी मेहरबान किताब में संजोया है। निश्चय कर कि हर उस खामोशी के पीछे एक नई तर्ज चल रही है जो तेरी तकदीर रचने को तैयार है। अब जो तुम निभाओ वह सिर्फ एक फरमाइश नहीं, यह एक आमंत्रण है उसकी रहमत में भाग लेने का। अपनी नीयतों को लौटा कर देख, अपने दिल के कोने कोने की सफाई कर और उन लाचार अरमानों को मेरे समक्ष सच्ची ईमानदारी से पेश कर। तेरी हर छोटी सी कासिदगी में मेरी नजर है। तेरे हर छोटे बड़े इरादों की कसौटी पर मैंने रखकर उनको तराशा है, ताकि जब मेरा इनाम आए तो वह तेरे लिए अटूट सुकून बनकर उभरे। अब अपनी थकान को एक पल के लिए ठहरने दे, पर ठहराव स्थायी न समझ। यह ठहराव तेरे भीतर नई ऊर्जा भरने का वह मजहब है जो तुझमें फिर से रोशनी जगा देगा। मैंने तेरे लिए जो राहें बंद की थीं, वे उस वक्त बंद की थीं जब मैं जानता था कि तुझे और तैयारी चाहिए थी। अब तेरे दिल में जो सबक बाकी रह गया था वह पूरा हो चुका है। इसलिए अब मेहनत में उस नए एहसास को जोड़ जो सिर्फ जुबान से नहीं, कर्मों से निकले। अपने हाथों से दूसरों की घुटने हल्की कर, उन पर दया कर जो तुझसे कमजोर हैं, और अपनी जिंदगी में इंसाफ की वो रोशनी जलाए जो मेरी राह की निशानी है। जब तू दूसरों के लिए किया हुआ अच्छा अपना बना लेगा, तब देखिएगा कि मेरी बरकतें कैसे तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, न ताकतवर तुष्टिकरण के रूप में, बल्कि ऐसे अनोखे अवसरों की शक्ल में जो तेरे लिए नई उमंग और नई खुशी लाएंगे। अब पुराने ख्यालों को जकड़ने का समय नहीं। जो कल अधूरा रहा उसे मैं एक नई शक्ल में पूरा कर दूंगा, और जो आज पूरा कर रहा है उसे तेरे कल का सहारा बना दूंगा। तेरी जिंदगी में आने वाला हर हल्का सा बदलाव मेरे इशारे की तरह होगा। कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक नए दोस्त का हाथ, कभी एक ऐसा काम जो तेरे दिल की आवाज से मिलता जुलता हो। और इन सबसे बड़ा इशारा यह होगा कि तू खुद में नया विश्वास पाएगा। अब अपने भीतर की नफासत को पहचान जो तेरे अंदर तपती रही, उसे मैं ठंडक और रोशनी में बदलने वाला हूं। जो तेरे अंदर धुंध थी उसे मैं साफ कर दूंगा, ताकि तेरे फैसले अब और भी ज्यादा पक्के और सुनहरे हों। गिर कर उठना, हार कर जीतना, सब मेरे इरादा रहमत के हिस्से हैं। और जब तू हर गिरावट से सीखकर फिर खड़ा होगा, तेरी आवाज में एक ऐसी मिठास आ जाएगी जो दूसरों के दिलों को भी बदलाव की हिम्मत देगी। मेरी रहमत का घूंघट कभी नहीं हटेगा, पर जब तेरी नीयत में निखार आएगा तो मैं उसे खोलकर तेरे लिए बेखौफ कर दूंगा, ताकि तू वही पा सके जो तेरे लिए निहायत मुफीद और सच्चा है। इसलिए अब अपने भीतर से किसी भी तरह के अफसोस और शक को बाहर निकाल। उन्हें अपने लहजे से, अपने कामों से, अपनी दुआओं से बदल देना, क्योंकि दुआ तभी असर करती है जब उसकी धुन में तुझ में बदलने की ताकत हो। तेरी हर आशंका को मैंने नोट किया है, पर उससे भी जरूरी यह है कि तूने अपने हर अच्छे इरादे को भी सहेजा है। उन्हीं इरादों को अब जिंदा कर और खुदा के हुक्मों में सच्चाई के साथ आगे बढ़। नई राहें खोली जाएंगी, कभी अचानक, कभी धीरे धीरे, पर हर राह का मकसद एक ही होगा, तेरी आत्मा को शिफा देना, तेरे घर को सुकून से भरना, तेरी मेहनत का फल तेरी हथेलियों पर रखना। जब ये वक्त आएगा तू खुद महसूस करेगा कि तेरे अंदर की रातें कैसे सुबहों में बदल गईं, तेरी आंखों के आंसू कैसे शौक और खुशियों के आंसू में तब्दील हुए। अब पीछे मुड़कर उन लम्हों को मत गिन जो तुझे रोके रहे, उन्हें धन्यवाद कर और आगे बढ़। और याद रख, यह सफर तन्हा नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर हल्के से हल्के एहसास में, तेरे हर जोरदार अरमान में।
मेरा साथ तुम्हें इस कदर सुदृढ़ कर देगा कि जब तू आगे बढ़ेगा तेरे कदम न सिर्फ तेरे खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेंगे। इसी आस पर चल, ना सिर्फ उम्मीद रखें बल्कि ऐसे कदम उठाए जिनसे वो उम्मीद हकीकत बन सके, और जब हकीकत बनी तो उसे बांटकर दूसरों को भी हिस्सा दे। यही सबसे बड़ा इम्तिहान और फरमाइश है। और मैंने वादा किया है कि जो इस रास्ते पर सच्चा रहेगा मैं उसे ऐसे इनाम से नवाजूंगा जिसे देखकर उसकी रूह रोशन हो जाएगी। अब उठ, अपनी दुआओं में नए नाम जोड़, अपने इरादों को ऐसा चमका दे कि वह मेरे दरबार तक आवाज बनकर पहुंचे, और वैसे ही जैसे बूंदें मिले तो समंदर बन जाती हैं, तेरी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर तेरे लिए वह समंदर बनेंगी जिसमें मेरी रहमत की नौका तेरे लिए ठहर जाएगी। जब भी बारिश की बूंदें तेरे घर की छत पर गिरेंगी, बंदे समझ लेना कि वो महज पानी नहीं है, वो तेरे रब की रहमत का पैगाम है जो आसमान से उतरकर तेरे दिल और तेरी जमीन दोनों को सींचने आया है। हर बूंद अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है। कोई अदृश्य तिजोरी खुलती है जिसमें तेरे नसीब का सोना और तेरी मेहनत का हीरा छिपा होता है। वो बारिश जो तेरे आंगन की मिट्टी को भीगी बना देती है, दरअसल तेरी दुआओं के जवाब में आई होती है। जब वो तेरे खेत की जड़ों में उतरती है तो हर बीज को अपनी रहमत से गले लगाती है, और फिर वो बीज तेरे लिए फल नहीं बल्कि बरकत बनकर उगता है। हर कण में अल्लाह की कसम ऐसी चमक भर दी जाएगी कि तेरे खेत में सिर्फ अनाज नहीं, तेरे रूहानी अमल की खुशबू भी फैलेगी। जब हवा उस भीगी मिट्टी की खुशबू तेरे घर में ले आएगी तो तेरे दिल को ऐसा सुकून देगा जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। समझ ले, ये सोना वो नहीं जो बाजार में बिकता है, ये तेरे ईमान, तेरे सब्र और तेरे नेक अमल की कमाई है जो अब तेरे घर में बरसने वाली है। और वो हीरा, वो तेरे दिल की रोशनी है जो हर मुश्किल में तुझसे मुस्कुरा कर कहेगा, देख, रब ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कोने में, हर छत से टपकती बूंद के साथ एक फरिश्ता उतरेगा जो तेरे घर की चौखट पर अमान रख जाएगा, तेरे बच्चों की आंखों में नूर डालेगा, तेरे बुजुर्गों के चेहरों से थकान मिटाएगा, और तेरी बीवी के हाथों में वो कुदरत भरी बरकत रख जाएगा जो तेरा घर आबाद कर देगी। जब तू आंगन में खड़ा होकर उस बारिश को देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि हर बूंद के गिरने की आवाज में एक जिक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तेरे लिए ये नेमतें भेजी। तेरे खेतों में जो पानी गिरेगा वही पानी तेरे जीवन की कस्में पूरी करेगा। हर पौधा गवाही देगा कि इस घर के मालिक ने सब्र किया, इसलिए आज अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश भेजी। अब जब तू हाथों से उस बारिश को पकड़ने की कोशिश करेगा तो तेरे हथेलियों पर चमकती बूंदें सोने की लकीरों जैसी लगेंगी, वो लकीरें जो अब तेरे मुकद्दर की तख्ती पर दर्ज होंगी। आंगन में जो पानी इकट्ठा होगा वो सिर्फ पानी नहीं रहेगा, वो तेरे घर की दीवारों पर रहमत की परत बनकर जम जाएगा जिससे तेरे घर की हर सांस में बरकत दौड़ जाएगी। खेतों में जब वह बारिश माटी को छुएगी तो मिट्टी की हर दरार से हरा रंग उभरेगा, और वो हरा रंग तुझे याद दिलाएगा कि जड़ से फल तक सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हर बूंद तेरे लिए गवाही है कि अब वक्त आ गया है, तेरे सब्र का, तेरे इंतजार का, तेरे यकीन का फल उतरने वाला है। तेरा आंगन अब तंग नहीं रहेगा, उसमें फूल भी खिलेंगे और खुशियां भी बसेंगी। बच्चे उस बारिश में खेलेंगे और तेरी रूह भीतर से मुस्कुराएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि ये बरसात महज मौसम नहीं, तेरे रब का पैगाम है। वो कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझसे वादा किया था कि सब्र करने वालों के घर मैं बरकतों की बारिश बरसाऊंगा। अब वो वादा पूरा हो चुका है। तेरे खेतों में सिर्फ फसल नहीं, किस्मत उगेगी। तेरे घर में सिर्फ दीवारें नहीं, दुआएं बसेंगी। तेरे आंगन में सिर्फ पानी नहीं, रूह की ठंडक गिरेगी। जब वो बारिश थमेगी तो तू देखेगा कि तेरा घर पहले से ज्यादा रोशन है, तेरे खेत पहले से ज्यादा हरे हैं, और तेरे दिल में एक नई रोशनी जगी है। वो सोना और हीरा जो तूने मांगा नहीं, अब तेरे घर में आ चुका है। अल्लाह ने तुझे बिन मांगे इतना दिया कि तेरी आंखें सजदे में झुक जाएं। हर बूंद का असर तुझ में उतरेगा, तेरी रगों में दौड़ेगा, तेरे लहजे में ठहराव और तेरे हाथों में शिफा ले आएगा। अब जब अगली बार बारिश हो तो सिर्फ आसमान मत देखना, बल्कि अपने दिल के भीतर देखना। वहां भी अल्लाह की रहमत का एक बादल उमड़ रहा है जो तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरे ईमान का मौसम अब आने वाला है, और इस बार तेरे खेतों में सिर्फ अनाज नहीं
तेरे नसीब की चमक उगेगी जो पूरी दुनिया को बता देगी यह घर वो है जिस पर अल्लाह की रहमत की बारिश पड़ी थी, और जब वो रहमत की बारिश थम जाएगी तब भी उसका असर मिट्टी से नहीं जाएगा। हर कण में उसका निशान रहेगा, हर सांस में उसकी ठंडक रहेगी। तू जब अपने खेत की मेड़ों पर चलेगा तो तेरे कदमों के नीचे की मिट्टी तेरे लिए दुआएं पड़ेगी। वो बोलेगी ये वही है जिसने सब्र किया, जिसने रब पर भरोसा रखा जब बाकी सब हार मान चुके थे। तेरी फसलों की हर पत्ती, हर फूल, हर लहराती बालियां अब तुझसे बातें करेंगी। उनमें सोने की सी चमक होगी क्योंकि तेरे रब ने उनमें तेरी मेहनत का रंग भर दिया है। जो बूंदें कभी तेरे चेहरे पर गिरी थीं वही अब तेरे मुखद्दर की रेखाएं बन चुकी हैं। वो तेरे माथे पर नूर की तरह चमकेंगी। तू जब आंगन में बैठेगा तो हवा भी अलग लगेगी, उसमें एक ऐसी मिठास होगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तेरे घर के दरवाजे से जब बच्चे बाहर भागेंगे तो उनके पैरों के नीचे वो धरती मुस्कुरा उठेगी क्योंकि उसने उस रहमत को पी लिया है जो आसमान से तेरे नाम उतर कर आई थी। अब जब तू हाथ उठाकर शुक्र अदा करेगा तो तेरी आवाज सीधी अर्श तक पहुंचेगी। वहां फरिश्ते तेरा नाम लेकर कहेंगे ये वही है जिसने बारिश के साथ अपनी तकदीर बदल दी। तेरे घर की दीवारें भी अब गवाही देंगी कि यहां कभी गम की धूल थी मगर अब वहां बरकत का उजाला है। जब रात उतरेगी तो तेरे घर की खिड़कियों से जो रोशनी निकलेगी वो किसी दिए की नहीं होगी, वो तेरे ईमान की रोशनी होगी जो अब हमेशा के लिए जल चुकी है। खेतों में जब हवा चलेगी तो उसकी सरसराहट में तेरा नाम गूंजेगा क्योंकि वो खेत अब तेरे सब्र की कहानी बयान करेंगे। अल्लाह ने तेरे लिए वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तेरे लिए मिट्टी को सोना बना दिया और तेरी मेहनत को हीरा। अब जो भी तेरे घर आएगा वो तेरा घर देखकर कहेगा यहां कुछ अलग है, यहां एक नूर है जो इंसानी नहीं रब्बानी है। तू समझ ले ये सब तेरा इनाम नहीं, तेरे इम्तिहान का फल है। हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया वो अब उस सोने की बूंद बन गया है जो तेरे घर के हर कोने में झिलमिला रहा है। तेरी रसोई की खुशबू, तेरे बच्चों की हंसी, तेरी जुबान की दुआ सब अब एक नई मिठास से भर गए हैं। जो कभी तंगदस्ती का वक्त था अब उसी जगह बरकतों का सागर बह रहा है। जो कभी सूखी जमीन थी वहां अब रहमत की नदियां बहती हैं। और देख अल्लाह का करम इतना गहरा है कि वो बरसात जो सिर्फ तेरे खेतों के लिए आई थी अब तेरे पड़ोसी के खेतों में भी जा पहुंची ताकि तेरी बरकत किसी और की खुशी बन जाए। यही रब की इनायत है कि जब वो देता है तो सिर्फ तुझ तक नहीं रखता, तेरे हाथों से दूसरों तक पहुंचाता है। अब तेरा घर दुआओं की जगह बन चुका है जहां हर मेहमान को सुकून मिलेगा, हर थका हुआ दिल आराम पाएगा। तेरे खेत अब सिर्फ अन्न नहीं देंगे बल्कि अमन देंगे। तेरे घर की दीवारें अब सिर्फ ईंटों से नहीं रहमतों से बनी हैं। जब अगली बार बारिश होगी तो वो फिर तेरे आंगन में उतरेगी मगर अब वो बूंदें पहचान से आएंगी। वो जानेंगी कि यह वही घर है जहां ईमान ने जड़ें पकड़ी और सब्र ने फूल खिला दिए। वो बूंदें अब तेरे सिर पर ऐसे गिरेंगी जैसे ताज के मोती तेरी जिंदगी के मुकुट को पूरा करने के लिए। और तू जब उस बारिश में हाथ उठाएगा तो तेरा दिल बोल उठेगा ऐ रब अगर यही तेरी रहमत है तो मैं हर बार वही बारिश चाहता हूं जो मेरे खेतों में बरसे, मेरे आंगन में गिरे और मेरे दिल को तेरे नूर से भर दे। तब तुझे महसूस होगा कि अब तेरा घर धरती पर नहीं रहमत की छांव में बस गया है। और हर बूंद जो गिरती है वो अब सिर्फ पानी नहीं, तेरे रब की मोहब्बत का वो लम्हा है जो तेरे नाम लिखा जा चुका है और जिसे कोई भी तूफान मिटा नहीं सकता। और अब उस बारिश के बाद जब सब थम गया है हवा में एक नई खुशबू तैर रही है। वो सिर्फ भीगी मिट्टी की नहीं बल्कि उस ताजा शुरुआत की है जो तेरे नाम से लिखी गई है। इस बार तेरी जिंदगी में जो हरियाली उगेगी वो सिर्फ खेतों में नहीं तेरे हालातों में भी होगी। अब तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक नई ताकत जाग चुकी है। वो ताकत जो किसी दौलत से नहीं बल्कि उस यकीन से आती है कि रब जब देता है तो किसी हिसाब से नहीं, अपनी इनायत से देता है। अब तेरी नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं रहेंगी, तू आसमान को भी उसी भरोसे से देखेगा जैसे कोई बच्चा अपने पिता की आंखों में यकीन ढूंढता है। वो बारिश तेरे दिल की धरती को मुलायम कर गई है जहां अब सिर्फ बीज नहीं बल्कि एहसास बोए जाएंगे। वो एहसास जो मोहब्बत सिखाते हैं, शुक्र अदा करना सिखाते हैं और सब्र की कीमत समझाते हैं।
اب जब तू किसी और के सूखे खेत देखेगा तो तेरे दिल में रहमत की फुहार उठेगी। तू चाहेगा कि वही बरकत उनके हिस्से में भी जाए। यही तो असल नेमत है, जब तेरा दिल दूसरों के लिए भी दुआ करने लगे। अब तेरी जुबान पर जो कल शिकायत थी, आज वही जुबान शुक्र के गीत गाएगी। तेरे शब्द अब दर्द से नहीं, दरिया दिली से निकलेंगे। तेरे घर की हर सुबह अब एक पैगाम लेकर आएगी कि जितनी भी अंधेरी रातें थीं, वो अब सिर्फ तेरी कहानी का हिस्सा है, तेरी मंजिल नहीं। तू अब उन लम्हों से भागेगा नहीं, उन्हें सीने से लगाएगा, क्योंकि उन्हीं में तेरा सबक था, उन्हीं में तेरी पहचान थी। अब तेरी नजर सिर्फ नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर जाएगी। तू समझेगा कि अल्लाह की देरी इनकार नहीं, तैयारी है। तू जब अपने बच्चों को देखेगा तो तेरे अंदर ये यकीन पनपेगा कि उनकी आंखों में जो मासूमियत है, वो उसी बारिश की देन है जो तेरे घर को पवित्र कर गई। अब जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी परेशान को मुस्कुराहट, किसी गमगीन को उम्मीद, तो वो सब लौट कर तेरे घर आएंगे, उसी रहमत के रूप में जो एक दिन तूने बारिश की बूंदों में महसूस की थी। अब तेरा घर सिर्फ एक मकान नहीं, एक दरगाह बन गया है, जहां से अल्लाह का शुक्र अदा होता है और जहां आने वाला हर इंसान अपने दिल का बोझ हल्का कर जाता है। और तू अब वही इंसान नहीं रहा जो कल था। तेरी सोच में नूर का रंग आ गया है, तेरे दिल में अल्लाह के करम की स्थिरता आ चुकी है। अब तू जब रात को आसमान देखेगा तो तेरी नजर सिर्फ तारों पर नहीं जाएगी, बल्कि तेरे दिल में वो चमक उठेगी जो कहेगी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यही असली दौलत है। जब दिल इत्मीनान पा जाए, जब आत्मा संतुलन में आ जाए, जब तू खुद को अपने रब के करीब महसूस करे, और उस पल तेरा दिल एक सच्चे सजदे में ढल जाएगा। वो सजदा जो सिर्फ माथे का नहीं, रूह का होगा। उस सजदे में तू कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे एहसास होगा कि सब कुछ पहले ही तेरे हिस्से में लिखा जा चुका है। अल्लाह ने तेरा नाम अपनी रहमत की लिस्ट में रख दिया है। और अब हर नया मौसम, हर ठंडी हवा, हर बारिश की बूंद तुझे सिर्फ एक बात याद दिलाएगी कि जब रब तय करता है देने का, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तेरी जिंदगी एक दुआ की तरह बहेगी, जो हर दिशा में शांति और बरकत फैलाएगी। तेरे कदम अब जमीन पर रहकर भी जन्नत की राह पर होंगे, और तेरे दिल में वो ठहराव होगा जो किसी इनाम से बढ़कर है, अल्लाह के करीब होने का एहसास।